or visibility for applications virtual class. Last class study we are discussing something functions with various parameters and arguments, local variables and global variables, how to declare a global variable and how to pass out the value via parameters, then how to get return back to the value from a function to the main function, main program. So friends, today we will discuss the same programming. Actually, we want to discuss the forms controls in VBA. No problem, we have time up to means 17th of this month. I will try to cover the forms controls also. But our aim is we want to learn confidently, means step by step. Today, I want to give a small clarification about that program. Robin sir, are you seeing my screen, MS Excel screen? Hello? अभी नहीं दिख रही है सर, अभी ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, वो एक्चुअली मिनिमाइज करके बैठो ना सर, दूसरा फाइल को क्लोज करो। एक बार बंद करके दोबारा चला दीजिए सर। हाँ, वही कर रहा हूँ सर। है ना सर? मैंने हमें क्लिक किया। सर now it is नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है। क्या? आप बाकी सारी एप्लीकेशंस को बंद कर दीजिए सर। हाँ, वर्ड वगैरह अब तो सारे क्लोज है सर, क्लोज कर दिया है। चलिए अब फाइल खोल के now it is open. हाँ Okay सर, sir. अभी दिख रहा है सर। Okay, thank you sir, thank you sir. Friends, please look at here. So in last class we have discussed about this same function. So when you want to declare the global variables, first of all you can define from the beginning of the sub procedure or function whatever it may be. सबसे top side of variable को declare अंदर तो मतलब ग्लोबल वेरिएबल माना जाता है। सी लैंग्वेज C++ में क्या मेन प्रोग्राम्स के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं एज ए, then if you are using another variables in a particular function, so that variables are called as a local variables. So local variable, for accessing of the local variable is the limitation range. Within the function only we can use the local variables. So global variables you can access anywhere in your entire program. से क्या है, ग्लोबल वेरिएबल को वेरिएबल से क्या फायदा है, हम उस वेरिएबल्स को हमारा पूरा प्रोग्राम में कहीं भी हम उसको काम में ले सकते हैं, एक्सिंग वर्किंग में कोडिंग के अंदर। इफ इट इज ए और व्हाट अबाउट द लोकल वेरिएबल्स मींस सपोज हियर इन आवर प्रोग्राम वी आर यूजिंग j k l internally, so these are local variables. So now
I was already communicated this program to your means groups, students groups. Some of the students already practiced it. Okay, so I want to please देखो पहले हम देखते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर कर्सर रखा हूं Take it here, friends. I randomly given the values. Welcome to the baby last one. Means why I was executed that one. Before giving the explanation, I want to check it. Yesterday you are facing some problem. So look at here now. Please, I humbly request to all my trainees and staffs who are joined today class. Once again, please concentrate here. So this dim n of 1 to 10 as integer. n एक array है 1 से लेकर 10 तक वेरिएबल्स को वैल्यूज को स्टोर करने के लिए 0 को हमने इग्नोर किया है नेगेटिव dim I comma g sum जनरल सम e sum मींस इवन सम o sum मींस ऑड सम के लिए मैंने तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है सो पहले फंक्शंस में आपको याद होगा सेम फंक्शन नेम को हम फंक्शन नेम का साथ रिटर्न करते थे क्योंकि वो लोकल वेरिएबल का वैल्यू फंक्शन नेम के साथ असाइन करते थे मेन प्रोग्राम का अंदर लेकिन अब ये g sum e sum and even sum odd sum general sum are using as a global variable so look at here so first of all you have declared the global variables means I g sum e sum o sum as a global variable as well as n of 1 to 10 एक array वो भी globally declare किया है this is the main program sub general sum means sub procedure इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ऊपर तो डिक्लेयर किया हमने जी सम ई सम एंड ओ सम तो इनिशियलाइज किया है सम इज इक्वल टू 0 ओ सम इज इक्वल टू 0 अब हमने कहा काम करना है मेन सब प्रोसीजर के अंदर फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10 i तो सपोज देखिए सब प्रोसीजर के अंदर तो हमने डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि अबोव टॉप साइड मींस वेरिएबल तो ग्लोबल वेरिएबल तरीके से हमने डिक्लेयर किया है में ये सब प्रोसेस के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है क्लास में आप लोगों ये कोशिश कीजिए हाउ टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल इन आवर एंटायर प्रोग्राम एज वेल एज व्हाट आर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल वेरिएबल्स ओके लोकल वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज those variables are used within that particular function definition only एक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक फंक्शन लिखते समय पर फंक्शन के अंदर जितना भी वेरिएबल्स को हम इन्वॉल्व करते हैं उस फंक्शंस को उस वेरिएबल्स को कहते हैं हम लोकल वेरिएबल्स वो लोकल वेरिएबल का सीमा उसी फंक्शन के अंदर ही है उस फंक्शन से बाहर आने के बाद उस वैल्यूज को हम कैरी नहीं कर सकते अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो फिर अपना प्रोग्राम में एंटायर प्रोग्राम में कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं सॉरी सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सो नाउ ऑल these above declared variables are global variables so due to that reason now within that suppress zeros initialization then for I is equal to 1 to 10 I as a global variable you already declared on the top side so n of I is equal to input box enter any number मेरा पास पड़ा array के अंदर 10 एलिमेंट्स को रीड कर रहा हूं मैं तो लूप का सहायता से for I is equal to 1 to 10 n of I is equal to input box enter any number आप लोगों को पता है इनपुट बॉक्स के हम वैल्यूज को रीड करते हैं array के अंदर पास कर रहे हैं साथ साथ में सेल्स i comma 1 dot value is equal to n of I array के अंदर लिख रहा हूं उसी वैल्यू को साथ साथ इमीडिएटली मैं array से क्या कर रहा हूं मैं एक्सेल शीट पर प्रिंट कर रहा हूं तो एक्सेल शीट पर प्रिंट करने के लिए लूप के अंदर सेल्स i मींस 1 है तो 1 रो ये 1 मींस डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम ये सो n of I मींस जो भी i वैल्यू 1 2 3 चल रहा है उसका एलिमेंट सबस्क्रिप्ट इंडेक्स एलिमेंट वैल्यू डिस्प्ले करने लगेगा शीट पर देखिए इधर 1 है तो ये 1 पर first one will indicate the row second one will indicate the a column अगर 10 दिया तो नेक्स्ट i होने के बाद जिस तरह 10 टाइम चलता आपको पता है मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं रीड किया हमने अब देखिए ये जनरल सम मीन सारे नंबर्स को जनरल सम 10 नंबर्स में दे रहा हूं तो मैं क्या करना चाहता हूं जनरल सम नाम से मैंने so 10 means 10 giving the parameter list 10 value pass so then we are using that means the result will be written from the function sub procedure
सो रिजल्ट आने के बाद ऑलरेडी हमने तो लिखा है, ये तो स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट करेगा, सेल्स 11,1 डॉट वैल्यू इक्वल टू जनरल सम। फिर इसके नीचे मींस इधर साइड देखिए 55 जहां पर दिखाई दे रहा, 11,1 डॉट वैल्यू में क्या होगा, ये 11 पर कॉलम तो वही है, तो जनरल सम जो स्ट्रिंग के अंदर दिया वो प्रिंट कर दिया उन्होंने। सेल्स 11,2 डॉट वैल्यू जी सम मींस जी सम इज वन ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। जी सम वैल्यू कहां पर, जनरल फंक्शन समय पर जनरल फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जाके, तो उस फंक्शन को कैलकुलेशन करने के बाद जब इस फंक्शन से दोबारा मेन वापस आते समय पर वैल्यू को भी, तो वो वैल्यू हम कर रहे हैं ई सम, क्योंकि ई सम एंड जी सम ये सारे इसलिए कभी भी हम हमारा प्रोग्राम के अंदर काम में ले सकते हैं। लोकल फंक्शन के अंदर भी जी सम, मेन प्रोग्राम के अंदर भी देखिए। सो ये सेल्स 11 सोल कॉलम मींस ये वाली, इसके अंदर जनरल सम वैल्यू प्रिंट करने। फिर इवन सम ऑफ 10 नंबर्स मेरे पास हो सकते, ये रूल है ना 5 इवन नंबर्स आउट ऑफ 10 6 इवन नंबर्स हो सकते हैं, नहीं तो 10 भी इवन नंबर हो सकता है, कुछ भी है। 10 नंबर्स को हम पास करना है, 10 नंबर्स में से ये लूप चलाने के लिए इवन सम एक फंक्शन है, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल में ई सम जी सम ओ सम लिखा हमने, इवन सम तो लिखा, उसको ये पता चलता है फंक्शन है, तो फिर ये 10 वैल्यू को पास करेगा। अभी मान लीजिए इवन डिफाइन किया फंक्शन इवन सम, सो द 10 विल बी पास ऑन टू द के एज इंटीजर, ओवरऑल फंक्शन का रिजल्ट इंटीजर, तो ये आई इसलिए हमने काम में लिया ग्लोबल वेरिएबल। चलिए हम ऊपर से आते हैं, इस तरह तीनों सम्स का इवन नंबर सम का रिजल्ट है ई कॉलम के अंदर प्रिंट करता है। इस जगह की बात कर रहे हैं, लोकेशन सेल की। फिर ऑड सम को कॉल कर रहे हैं हम, ऑड सम को कॉल करते समय पर वैल्यू पास कर रहे हैं 10 आइटम्स, मतलब 10 टाइम्स लूप चलाने के लिए। फिर उधर से वापस आते समय पर ऑड नंबर सम प्रिंट कर रहे हैं 13th रो पर फर्स्ट कॉलम 1, अगेन 13th रो सेकंड कॉलम बी में उसका रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो लास्ट में वेलकम टू वीबीए फंक्शन एंड सब मींस मेरा मेन समाप्त हो गया। अब फंक्शन जनरल सम, प्लीज लुक एट हियर, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जनरल आर्गुमेंट्स को यानी पैरामीटर्स, जनरल सम मेन लूप से बाहर आने इधर फंक्शन जनरल सम, वो दोनों का स्पेलिंग बराबर है, जनरल सम मिल गया उसका, फिर ब्रैकेट के अंदर जे एज इंटीजर, अब वो 10 वैल्यू जे को पास करेगा, तो इनडायरेक्टली जे इज इक्वल टू 10 हो गया। So then for I is equal to 1 to 10, I value I is a global variable, इसलिए मैं इस लूप पे फंक्शन के अंदर भी यूज कर रहा हूँ मैं। फिर 1 to 10 J वैल्यू 10 हो गया इधर, क्योंकि पास किया उन्होंने, तो J वैल्यू 10 होने के कारण से फिर इनडायरेक्टली हुआ क्या है 1 to 10 हो गया। फिर जी सम इज इक्वल टू जी सम प्लस एन ऑफ आई, शुरू में जी सम ने क्या किया, हमने 0 असाइन किया, अब फर्स्ट टाइम एलिमेंट का अंतर क्या करेगा, ये जनरल सम में 0 प्लस एन ऑफ 1, फर्स्ट वैल्यू हमने 10 इसको ऐड करेगा, 0 प्लस 10 10 को जी सम जनरल सम में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट आई वैल्यू 2 पर जाएगा, फिर 2 कंडीशन ट्रू, फिर इस तरह नेक्स्ट ट्रीट करेगा एन ऑफ 2 में, ये फिर जोड़ देगा 10 प्लस 1 11 नया सम जनरल सम हो गया। इस तरह लूप रिपीट करके जो भी फंक्शन मींस 10 टाइम्स रिपीट करने के बाद वो सम वैल्यू टोटल जनरल सम जी सम का अंदर, फिर जब आई वैल्यू 11 हो गया 1 to 10, लेकिन आई वैल्यू 11 कंडीशन फेल होने के कारण से फिर वापस फंक्शन से बाहर आके जहां से हमने कॉल किया फंक्शन को उस जगह पर चले गया। फिर जाने के बाद नीचे ये लिखा है ना 11,1 डॉट वैल्यू इक्वल टू जनरल सम, 10 नंबर्स को प्रिंट करने के बाद सम भी कर दिया, फिर वो वैल्यू इधर प्रिंट करेगा, जो लेकर आया वैल्यू वो इधर प्रिंट करता रहता है, मींस बगल में बी कॉलम का अंदर 2 लिखने की वजह से। इसी तरह तो मेन प्रोग्राम से बाहर आके ढूंढेगा इवेंट से 10, the 10 will the k, so k is the local variable, so then indirect is equal to 1 to k means 1 to 10, again if n of I is mod 2, सब नंबर का डेफिनेशन क्या है, 2 में पर
कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करते समय पर रिमाइंडर 0 है तो तब हम क्या कहते हैं इसको इवन नंबर। एक नंबर को करने के बाद अगर इसका जो शेष 0 आ गया तो फिर नंबर को हम इवन नंबर कह लेते हैं। तो ये परसेंटेज ऑफ ऑड है VBA में। सो इफ n ऑफ i मींस i वैल्यू फर्स्ट है तो n ऑफ i में फर्स्ट क्या है 10 को लेगा, मॉड ऑफ 2 मींस डिवाइड करते समय पर मॉड फंक्शन का कारण से रिमाइंडर क्या होगा 10/2 मींस 5, रिमाइंडर 0, 2 5 4 10 10 है ना, तो रिमाइंडर 0 होने के कारण से वो ट्रू हो गया कंडीशन। फिर इवन सम का अंदर आने के बाद इवन सम ऑलरेडी शुरू में 0 डिक्लेयर किया हमने, सो फिर 0 प्लस फर्स्ट टाइम n ऑफ i फर्स्ट वैल्यू 10 ऐड कर देगा तो इवन सम। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम वैल्यू 2, ये तो 10 हो गया, 10 कंडीशन ट्रू, then it will enter the loop, again it will check the condition। अगर वो दिया गया नंबर शेषफल 0 नहीं है 2 से डिवाइड करते समय पर इस तरह प्रति नंबर को डिवाइड करेगा, जिसका शेषफल यानी रिमाइंडर 0 है इसको इवन नंबर मान के तो पुराना सम का साथ जोड़ देगा। जब आई वैल्यू 11 होने के बाद लूप से बाहर आके फिर इस रिजल्ट को यानी वैल्यू को मेन फंक्शन पर इधर रिटर्न कर देगा। ये वैल्यूज लिखा था हम शुरू में, पहले फंक्शन से एग्जीक्यूट करेगा फिर रिजल्ट इधर आ जाएगा। सबसे पहले ये रीडिंग 10 नंबर्स, रीड करने के बाद जनरल फंक्शंस को कॉल कर, रीड करते समय पर साथ साथ प्रिंट कर दिया हमने शीट पर, फिर एक एक फंक्शंस को कॉल करेगा। इसी तरह फिर लास्ट में क्या लिखा हमने, थर्ड में ऑड सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो अगेन द 10 विल बी पास ऑन टू द ऑड फंक्शन आर्गुमेंट i को, सॉरी गेट l। सो नाउ फॉर i इज इक्वल टू 1 to l मींस 10 हो गया। सो देन कंडीशन ट्रू 1 to 10। ऑलरेडी इवन नंबर के लिए हमने क्या किया, रिमाइंडर 0 है तो इवन नंबर मान लिया, रिमाइंडर 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, सो 1 है। 2 से डिवाइड करते समय पर देयर आर 2 रिमाइंडर्स आर अकर, इधर 0 और 1। कोई भी नंबर एक नंबर से डिवाइड करते समय पर उस नंबर से कम तक जितना भी डिजिट है उतना डिजिट्स आ जाएगा। 2 मींस 0, 1, 2 तक नहीं आएगा, 2 तो इसलिए 2 पर 0 के अलावा है तो नॉट इक्वल टू 0, फिर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो इवन नंबर नहीं नंबर मानता है। तो इसलिए बस का सम करने के लिए और हमने लेकिन चेक करना पड़ेगा पहले नंबर से लास्ट आखिरी नंबर बीच में कौन सी नंबर आ यूज, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द यूजर अपना हिसाब से इनपुट देते समय पर हो सकते सारे इवन नंबर्स दे सकते हैं, रैंडमली दे सकते हैं, लेकिन हम नंबर का पहले नंबर से लेकर नंबर तक चेक कर। एज ए प्रोग्रामर that is our duty, you can check every number first number to last number 10th number, if any number is meet the condition, any number is follow this condition, means after dividing a number by 2 if the remainder is not equal to 0 then it will be treated as an odd number, so due to that reason that number will be odd sum। so पहली बात गया i value 2 ऑड नंबर में गिन के 0 + 1 1 हो जाएगा। सेकंड थर्ड हमने 9/2 yes odd number, so 1 + 9, so 9 1 + 9 is equal to 10, odd sum is equal to इसका अगेन एंड इफ का बाद नेक्स्ट टाइम 3 4 5 इस तरह लूप कंटिन्यू होता रहता है। जब पूरा कंप्लीट होने के बाद मेन प्रोग्राम पर जाके फिर उस वैल्यू को रिटर्न करने की वजह से हम ये ऑड सम फंक्शन को कॉल करने के बाद इस वैल्यूज को हम इस लाइंस का द्वारा हम प्रिंट कर रहे हैं। ये है, मैं दोबारा अरेज कर रहा हूं, इसको मैंने कॉपी किया है कहां पर, एक्चुअली फ्रेंड्स सॉरी फॉर यस्टरडे क्लास मींस लास्ट मोमेंट क्विकली टाइप द प्रोग्राम। आप लोगों ने देखा 8 मिनट बचा था, 5 या तो 8 मिनट, फिर लंबा प्रोग्राम टाइप करने की वजह से स्पीडली टाइप करने की वजह से स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गया है, उस कारण से रन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में तुरंत मैंने आपको सबको ग्रुप में भेजा है, आप लोगों ने भी किया होगा। लेकिन जो मीन्स
जो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए एज ए टीचर मेरा जिम्मेदार है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये। तो आप रन करके देखने रुकिए, ये है हमारा प्रोग्राम, सेम वही प्रोग्राम। मैंने आप लोगों से कहा कर्सर बीच में रखना, मेन प्रोग्राम मेन सब प्रोसीजर में। अगर मान लीजिए फंक्शन के अंदर कर्सर रखा, मैं रन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, हमें पूछेगा, डायरेक्टली रन नहीं होगा। देखिए डायलॉग बॉक्स के अंदर अब किसको मैं रन करूं, जनरल सम तो ऑलरेडी ऊपर लिखा ना सब प्रोसीजर, उसको क्लिक सेलेक्ट करके रन कर सकते हो, या जनरल सम का बीच में कहीं भी कर्सर रखिए, सब प्रोसीजर के बीच में रन करिए। एंटर एनी नंबर, सबसे शुरू में क्यों, ये तो मेमोरी का अंतर हो गया, सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंसलाइजेशन असली काम से शुरू हुआ है। आपसे हमसे पूछने लगा यू कैन गिव एनी नंबर, सपोज मैं रैंडमली दे रहा हूं इस बार, देखिए 5, नेक्स्ट वैल्यू, तो वो 5 ऑलरेडी देखिए रीड करके एरे का अंतर लिखा है, साथ साथ नीचे लिखे एक्सेल सीट पर लिखने के लिए तुरंत एक्सेल सीट पर पहली आई वैल्यू 1 कॉलम 1 कर दिया उन्होंने। अब कह रहा हूं कोई भी नंबर सपोज 50 एरे का अंतर स्टोर करेगा, एन ऑफ आई इज इक्वल इनपुट बॉक्स का सहायता से हमसे पूछ रहे हैं एरे का अंदर सेकंड एलिमेंट स्टोर किया, ये सेकंड लाइन सेल्स आई कॉमा 2 आई वैल्यू 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर वही लिखेगा 50। अब हम दे देंगे 10, अब हमने दिया 25। इस तरह जब आगे बढ़ते रहेगा एरे का अंतर रखेगा, साथ साथ एक्सेल सीट पर ये दिखने लगा। फिर 5 10 सपोज दोनों फर्स्ट इवन नंबर्स दिए ना हमने, चलो 20 दे देंगे। अब मैं 24 या 28 जो भी जानबूझ के दे रहा हूँ, कंटिन्यूसली 2 इवन नंबर्स 2 ऑड नंबर्स, ओके। देन आफ्टर दैट 25 हो गया, 35 30 45 40। देखिए ये है रिजल्ट। हमें लास्ट में जो लिखा है ना हमने, ये प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस वो सारे प्रिंट करने के बाद ये रहा, ये लाइन प्रिंट कर दिया, वेलकम टू वीपीए फंक्शन। ये है हमारे मेन प्रोग्राम में, कहाँ पर, एक एक फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद ये वाला उस वैल्यूज को फंक्शन के अंदर वैल्यू को मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न किया है। सो आई को हम इसलिए काम में लिए ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये समझने के लिए कोशिश कीजिए। अगर मैन्युअल है तो सर जी हम कैसे क्रॉस चेक करते हैं, अगर आपको देखिए मैंने इधर जानबूझ के कॉपी किया जो दिया हमने, तो एक्सेल सीट पर गया हूं ना हमने, तो फिर एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया, देखिए 249 में ऑटोमेटिक सम किया है, तो फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, ये सम है ना, तो प्रोग्राम से द्वारा सम किया 249, ये ऑटोमेटिकली रेडीमेड फंक्शन यूज किया हमने, वही बराबर हो गया है। ठीक है, अब अगर आपको सपोज क्या है इवन इवन नंबर्स क्या है, ये वाली 10 20 24 30 40, तो फिर इसका सम कॉपी कर देंगे 124। देखिए इवन नंबर सम 124, तो रिमेनिंग ऑड नंबर्स ये 5 15 25 35 45। अब इसको सम अगर चाहते थे दोनों सम करिए और क्रॉस चेकिंग 249, नहीं यू आर द मैच्योरिटी स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस चेकिंग, डीबगिंग करने के बाद टेस्टिंग। तो हर इनपुट्स के लिए फुलफिल हो रहा नहीं हो रहा, अब हमारा फर्ज बनता है क्रॉस चेक करने के लिए रिजल्ट सही दे रहा नहीं दे रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज, और फंक्शंस के अंदर क्या कर सकते हैं आप, एक रेंज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक फंक्शन में एक रेंज ऑफ वैल्यूज को भी आप इन्वॉल्व करके उसका क्या कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो रिजल्ट। ये सेव कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स प्लीज फंक्शन में क्या है, सपोज
रेंज डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लीज लुक एट हियर, एक रेंज को क्या है सेट, जो रेंज और ये रेंज वेरिएबल जो भी काम करते हैं हम, रेंज एज ए वेरिएबल, इसको क्या करना है सेट दैट रेंज वेरिएबल के फिर वो रेंज बताना पड़ेगा। विद इन द ब्रैकेट यू कैन डिफाइन द फॉर ईच नाम से आइटम, फॉर ईच आइटम सेल मान लीजिए वेरिएबल, फॉर ईच वेरिएबल यू कैन डू सम टास्क। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर फॉर लूप को तो वेरिएबल एनी कंफ्यूज, अभी क्लियर बड़ा करके स्क्रीन। We are last and finally discuss about the MS Excel is also one of the big subject. So friends, is functions मैंने बताया विदाउट एनी पैरामीटर्स, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने। फिर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करने के लिए सिंपली रेक्टेंगल एरे बताया मैंने, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देन कल का क्लास में हमने एक से अधिक फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का फंडा अभी भी हमने डिस्कस किया में है, तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा आपका। अब क्या है, सपोज मैं तो एक एरे के अंदर वेरिएबल को रीड करके भी कर रहा हूं मैं, पर नहीं है, सो मेरा क्या वैल्यूज एक्सेल शीट पर पड़ा हुआ वैल्यू क्या करना चाहता हूँ, एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करके रेंज के साथ पास आउट करना चाहता हूँ, एक एक वैल्यू को पास करके। सपोज एक कस्टमाइज एवरेज, जिस नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं तो इवन नंबर्स को, इधर पड़ा हुआ इवन नंबर्स को हम सम करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय पर टेम एक्स एज रेंज, हाँ ये असली बात है, इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा। तो टेम ये एज रेंज, सपोज अब कंफ्यूजन है तो एन एज रेंज। सो एन नाम से एक वेरिएबल है, वेरिएबल में क्या डाटा टाइप हमने स्ट्रिंग न्यूमेरिक वो नहीं बताया, इंटीजर वगैरह। एक रेंज, भैया एन नाम से मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करना चाहता हूँ, लेकिन वो साधारण वेरिएबल नहीं है, रेंज। रेंज मीन्स आपको पता है ग्रुप ऑफ कंटीन्यूअस सेल्स। अगर किसी को पता नहीं बेसिक फंडामेंटल्स एक्सेल में, रेंज का डेफिनेशन क्या, ग्रुप ऑफ कंटीन्यूअस सेल्स इधर इन रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप। ठीक है, सो सिंपल डेफिनेशन क्या आम स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज ए रेंज, लेकिन ग्रुप ऑफ कंटीन्यूअस सेल्स इज कॉल्ड एज ए रेंज। तो हम एक ग्रुप ऑफ सेल्स को एक मींस एक रेंज के अंदर डिफाइन करके फंक्शंस के अंदर काम में लेंगे एक वेरिएबल का ग्रुप। चलिए, तो अब part B I want to I'm already preparing notes in MS Word, then I can share to into groups or mails. Please wait, it is under process. So now friends, what I'm doing here, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपका, तो वो प्रोग्राम बताना चाहता हूँ। मैं इस फंक्शन बाहर लेकर आ रहा हूँ। सबको दिखाना, बात सपोज डाटा दे रैंडमली बाद में दे देंगे 10 नंबर्स। पहले इसको चेक करेंगे, कर्सर रखा मेन प्रोग्राम में, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने एक्स को काम में लिया है, तो इधर
इवन नंबर्स 30 आ गया। ठीक है, अब हम इस फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर ये कहाँ प्रिंट करना है, 11th पर प्रिंट करना है, 11th पर प्रिंट करना है तो प्रोग्राम के अंदर इधर देखते डिस्कस करते हैं। पहले हम देखिए, मैंने आपसे कहा है डिम एक रेंज को हमें क्या करना है, मीन्स एक डिफाइन करने के लिए अगर आपसे कंफ्यूज हो जाते हो तो मैंने हटाने के लिए कोशिश कर रहा हूं एन एज ए रेंज। इधर पड़ा हुआ डाटा डिम, ये है मेरा प्रोग्राम। क्या है, जनरल सपोज सम इवन नंबर्स को सम करना चाहता हूं मैं। ठीक है, इवन नंबर्स का कैसे सम करना चाहता हूं मैं, एक तो फंक्शंस द्वारा इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, दूसरा आई वांट टू इंप्लीमेंट द इवन नंबर सम यूजिंग फंक्शंस एज वेल एज द डाटा इज अवेलेबल इन माय एक्सेल शीट। ऑलरेडी वो डाटा एक्सेल शीट पर पड़ा हुआ है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट इन एरे, एरे के अंदर नहीं है, एक्सेल शीट पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स का मार्क्स जो हमने क्या करते हैं, डाटा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद स्टोर करते रहते हैं। तो डाटा एक्सेल शीट पर पड़ा हुआ, उस डाटा को तो हमें काम में लेना है, हमेशा थोड़ा ना मैं एक्सेल एरे के अंदर। एक्चुअली आफ्टर फिनिशिंग टेस्ट विंडोज एक्सेल वर्ड या तो VBA नेटवर्क, सो द टीचर कैन एंटर द डाटा सिंपली मान लीजिए करने के लिए, सो द Excel sheet, so data used in our entire the data range we are. So look at here dim and dim GS general sum को कम में ले लेंगे to this even sum. So now friends look at here, तो जो आपको हटा दिया set is equal to, हमने तो डिफाइन किया है हमने एन एक रेंज का चाहता हूं, लेकिन वो रेंज है क्या, व्हाट इज द रेंज, वी आर डिफाइनिंग दैट वन इज इक्वल टू रेंज ऑफ डबल कोट रेंज। देखिए ये है A10, सो बीच में कॉलम सबको पता है, ये कॉलम सिंबल विल इंडिकेट द रेंज। सो A1 से लेकर A10 तक मैं n का अंदर एक रेंज डेफिनेशन में डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है। So some friends look at here, is this simple, first time हमने फंक्शन लिखा है ना, e sum is equal to sum of n। अगर बोल लगातार अटेंड कर रहा हूं ना, you are attending continuously in my class, so please try to understand one thing। so e sum is equal to sum even of n। जब भी is equal आ गया है तो क्या करते हैं हम, राइट साइड पोर्शन सबसे पहले इंप्लीमेंट करेगा। सो सम इवन ऑफ n, सो सम इवन एक वेरिएबल तो है नहीं, सो हो सकता है प्रोसीजर फंक्शन। सो फंक्शन मान के ब्रैकेट के अंदर सपोज हम ये n को डिफाइन करके दिया ना रेंज, उसको पास कर। तो क्या हुआ, ई सम एग्जीक्यूट करने से पहले लेफ्ट साइड वैल्यू राइट साइड वैल्यू कंप्लीट करके फिर लेफ्ट साइड को पास आउट करेंगे, इज इक्वल का मतलब। तो राइट साइड क्या लिखा, सम इवन, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उसके अंदर पैरामीटर्स मींस लिस्ट डाटा वैल्यू दे रहे हैं, पास कर रहे हैं हम n है क्या, एक रेंज। सो रेंज A1 से लेकर A10 तक वो डिफाइन किया हम। फिर लास्ट में उधर से आने के बाद ई सम के अंदर पास करेगा वैल्यू, वो ई सम को इवन सम को हम प्रिंट कर रहे हैं। सब देखिए इधर, तो नेक्स्ट फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन नेम हमने दिया सम इवन, सो फंक्शन सम इवन सेम बराबर होना है। नेक्स्ट देखिए srng एज स्ट्रिंग, तो हमने क्या किया है, srng को एज स्ट्रिंग हम काम में ले रहे हैं। अगर x को मतलब आप x वैल्यू जो n वैल्यू पास करेगा इधर एज ए रेंज। ओके, सो अगर सेल, एक्चुअली सेल कॉन्सेप्ट था, सेल यूज करने में सपोज किसी को कंफ्यूजन है तो मैंने क्या किया, x एज ए रेंज लोकली डिक्लेयर किया है। नेम x एज रेंज मतलब क्या, जो स्ट्रिंग से जो भी आ गया है फिर इसको फिर हमें काम में लेने के लिए फर्स्ट x को एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना एज ए रेंज फॉर सेल इन काम में लिया। ये जो दो तरीके लिखा है ना, फॉर ईच x इन s मींस स्ट्रिंग रेंज। सो ये मेरा सम रेंज क्या है n,
तो n वैल्यू विल बी पास ऑन टू द SRNG. ओके, सो n एक रेंज A1 से लेकर A10, तो A1 से लेकर A10 का अंदर जो रेंज वैल्यूज मान लीजिए, रेंज रेफरेंस विल बी पास ऑन टू द अनदर वेरिएबल आर्गुमेंट, सपोज दैट इज कॉल्ड एज S रेंज मीन सम रेंज. सो सम रेंज का अंदर n में जो भी रेंज डिफाइन किया वो इनडायरेक्टली पास करता रहता है. जैसे हम जो इवन सम 10 लिखा, ऑड सम 10 लिखा, 10 वैल्यू पास ऑन टू द JK, इसी तरह n रेंज वैल्यू पास ऑन टू द S रेंज. Then after that, एक local variable dim x as a range काम में लिया for each x in SR range means sum range. तो sum range क्या, A1 से लेकर S range means आप don't make any confusion, A1 से लेकर A10. सर किसी को डाउट है, आ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं, we are student learners. So क्या डाउट आ सकते हैं सर जी, A1 से लेकर A10 कैसे आ गया है इधर, वही मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, प्लीज समझा रहा हूं. बोनस n क्या डिफाइन किया हमने, n इज इक्वल टू 2 8 10, दिस इज द n रेंज डेफिनेशन. तो हम रेफरेंस में बताया, सो दैट वी पास ऑन टू द हियर SRNG, दैट SRNG इज इक्वल, दैट इज इक्वल से लेकर n due to indirectly SRNG treated as A12. So अब क्या हुआ, for x in string, for each x means अब हमने प्रति एलिमेंट को, प्रति सेल को हम रेफर करने के लिए रेंज का अंदर x को हम लोकल वेरिएबल को डिफरेंट किया है. फर्स्ट क्या हुआ, रेंज A1 से लेकर A10 है ना, तो A1 फर्स्ट एलिमेंट that will be treated as x. X is equal to A1 range. फिर again तो A1 का अंदर प्रति एलिमेंट रेंज का अंदर for each x in S range means A1 लेकर A10 एंटायर रेंज का अंदर एक एक एलिमेंट को, वो एक एक एलिमेंट के साथ काम करने के लिए पर लूप चला रहे हैं. क्या काम करना है, if x dot value mod by 2 is equal to 0, सेम फंड हमने इवन सम को किया ना, इवन नंबर का डेफिनेशन वही है, रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल even number. So here same thing, if number or not check कर रहे हैं हम, x mod is to is equal to 0, इसके क्या मतलब है, if एक तो कंडीशन में का x dot value means, अगर आपको समझने के लिए A1 mod 2 is equal to 0, A1 का अंदर जो भी वैल्यू है 1 उसको 2 से डिवाइड करेगा. सो डिवाइड करने के बाद x A1 है ना, तो डॉट वैल्यू फंक्शन भी है, सो डॉट वैल्यू इनडायरेक्टली, सो A1 सेल का अंदर जो भी वैल्यू 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर 0 है नहीं है, वो अगर मान लीजिए 0 तब क्या करना है, सम का अंदर जोड़ना है ना, तो क्या सम इवन प्लस, मैंने सेल में काम नहीं, ये इफ x डॉट वैल्यू मोड 2, तो दैट मींस दिया गया का अंदर वैल्यू के बाद रिमाइंडर तो इवन नंबर माना जाएगा. सो इवन नंबर को सम जोड़ना है, शुरू में इवन नंबर सम तो 0 है, तो इसलिए प्लस x डॉट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जोड़ेंगे. इस तरह लूप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट x मींस A2 हो जाएगा x वैल्यू, फिर नेक्स्ट आने के बाद A4 A5 A10, फिर नेक्स्ट x आने के बाद A11 आने के बाद ऊपर गया फॉर ईच x इन स्ट्रिंग, तो x A10 तक था, लेकिन ये 11 हो गया है. लास्ट में लूप से कैसे आएगा, ये नेक्स्ट x का मतलब रेफरेंस बढ़ेगा A10, सो A10 सो A11, सो जब A11 हो गया, लेकिन हमारा रेंज के अंदर A कब सीमा है, सीमा से बाउंड्री से बाहर आ गया, तो इसलिए ये लूप से बाहर आने के बाद फंक्शन क्या करेगा,
मेन प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा। सो सम इवेंट के अंदर जो भी हमने सेम फंक्शन लिया ऑब्जेक्ट के कारण से वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं हम। देखिए इसमें क्या है, वो ग्लोबल वेरिएबल इसलिए डायरेक्टली ई सम ओ सम जी सम काम में लिया, इसलिए ये इधर तो अलग है। तो ये सम सेम नेम्स है ना, यू कैन रिमेंबर द सेम थिंग। You can give the same function name here as a variable object. So due to that reason, after finishing of the execution of this function, this value will be go return to the main sub procedure. So sum event के अंदर जो भी sum already execute करके save करके रखा है वो value लेकर आके इस sum का अंदर पास करेगा, वो इस sum का value हम इधर print कर रहे हैं। अब मैसेज बॉक्स में आने लगा ना, तो मैसेज बॉक्स के अलावा अगर आपको देखिए प्रोग्रामर हैविंग एन आइडिया, तो प्रोग्रामर का मतलब मैनेज करना पता होना चाहिए। मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर रहे हैं, हम एक्सेल सीट पर प्रिंट करना है तो क्या ऑलरेडी 10 तक तो प्रिंट में लिया, रेंज से कर सकते हैं या तो एक्सेल शीट वो सेल से भी कर सकते हैं। अगर सपोज सेल से करना, देखिए CELLS सेल्स, फर्स्ट रो क्या 11 कामा फर्स्ट कॉलम 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कोटेशन में लिखना है, क्या लिखना है, इवन नंबर सम। इवन नंबर्स को सम कर रहे हैं भैया फंक्शन रेंज का साथ, इवन नंबर्स सम इज इक्वल टू डबल कोटेशन कुछ भी लिखिए। तो होता है क्या है, वो प्रोग्राम में सेल का अंदर लिखने के लिए एक्सेल शीट पर, अब इस बगल में बी में प्रिंट करने के लिए अगर इसी सेल का साथ लिखना है तो 11 रो सेम है, 2 मीन्स बी कॉलम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, वो वेरिएबल नाम लिखना है ESUM सम का एक्सेल शीट पर लिख रहा हूँ, लेकिन मेन प्रोग्राम में तो मेन प्रोग्राम में ले जाने के लिए हमारा विजुअल बेसिक कहाँ लिखा हमने, ये रहा इस प्रोग्राम के अंदर लिखा, इधर लिख रहा हूँ वो दोनों सेंटेंस देखिए आपको सामने का अभी लिखा है ये। सो अब इसको इस दोनों सेंटेंस के कारण से क्या होता है, पहले हमारा सम मैसेज बॉक्स के अंदर था, अब एक्सेल शीट पर भी प्रिंट करेगा। अगर मैसेज बॉक्स को कमेंट लगा दे तो फिर इग्नोर करेगा, नहीं तो दोनों जगह पर प्रिंट हो रहा नहीं हो रहा वो देखते हैं। अब मैं रन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए सम ऑफ द इवन नंबर्स 30, इधर भी सम ऑफ द इवन नंबर्स 30 आ गया। तो आपको ये डाउट आ सकता है सर से हमसे तो ये वैल्यू तो पूछे नहीं, यू आर हैविंग अ डाउट ना सर, दिस फंक्शन एट द टाइम ऑफ रनिंग दिस प्रोग्राम कैन नॉट आस्क, हमसे पूछा भी नहीं है, ऑटोमेटिकली कैसे है। अगर आपको समझ में नहीं आती, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सच टाइप ऑफ डाउट, आई वांट टू गिव यू क्लैरिफिकेशन। पूछा इन्होंने ऑलरेडी डाटा दे दिया है, एक्सेल शीट का है, सेव किया को हमने काम में लिया विद द अल्फा इन द डेफिनेशन डिम एंड फिर इस सेट n इज within the column that range definition। ओके सपोज देखिए हम इस बार वैल्यूज को चेंज करेंगे 10 15 25 30 45 50 60 75 80। ओके अब इसमें से ये मैं मिटा, अगर ये मिटा दिए तो गलत हो जाएगा क्योंकि यही है सोर्स हमारा डाटा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नंबर क्या है, ये 10 हो गया, सबको पता है 2 से डिविजिबल वाला, 35 नहीं, then 60, okay, then 80। so for purpose तो करेगा, फिर साथ साथ हमें जो आया वो भी चेक करते हैं हम, गैप दे रहा हूं मैं जानबूझ के, ये है मेरा डाटा डेवलपर विजुअल बेसिक, फिर इसमें आया हुआ, इसमें आने के बाद फ्रेंड्स लिख दिया, तो मैं रन कर रहा हूं मैं, क्योंकि डाटा पूछेगा नहीं, इनपुट कमांड नहीं है, इनपुट बॉक्स डायरेक्टली रेंज A1 से लेकर A10, सो ये तक जो भी डाटा को कमिटेड data source from A1 to A10 because we are defined as a range, and so now we want to execute, look at here 230 बॉक्स में भी आया है, मैसेज बॉक्स के अंदर सम ऑफ द इवन नंबर्स 230, सम ऑफ इवन नंबर्स हमने मिटा दिया, लेकिन कोडिंग में लिखा सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग में वो प्रिंट किया, फिर नीचे इस सम के अंदर जो भी वैल्यू वो पास में डायरेक्ट प्रिंट किया 230 आ गया। ठीक है, ये हमने मैन्युअली क्रॉस चेक किया। 230 कैसा है, फंक्शन में मेन सब प्रोसीजर में लिखा है हमने
मैसेज बॉक्स सम ऑफ द इवन नंबर्स इज इक्वल टू एंड सम एंड हमारे मेन सब प्रोसेस के अंदर। तो ई सम के अंदर डाटा कहां से 30 सम किया, सम इवन फंक्शन सब प्रोसीजर से चले गई, फिर जो रेंज का वैल्यू एसआर रेंज का पास करके एक एक एक्स वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट कर रिजल्ट इधर डिस्प्ले किया है, वही चीज मैंने आपको, ठीक है। सो दिस इज द वे टू a group of cells and the range then your functions, उस रेंज को हम फंक्शंस के अंदर एक एक वैल्यू का साथ मींस एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर ईच फॉर लूप सबको पता फॉर i is equal to 1 to 10, डोंट मेक एनी कंफ्यूजन, फॉर i is equal to 1 to 10 ऐसे लिखते हैं हम, इसी तरह इसका जगह पर क्या लिखना है, फॉर ये लिखते हैं फॉर i is equal to 1 to 10, तो फॉर ये i is equal to 1 की जगह पर each x y जो भी है वे किसी एक सेल का अंदर एक वेरिएबल लेना चाहते हो, सेल है तो सेल, नहीं तो x y z इन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग प्रति वेल के लिए नेक्स्ट x मींस उस रेंज के अंदर आइटम पड़ेगा, रेंज रेफरेंस टाइम x फर्स्ट रेफरेंस, नेक्स्ट x मींस सेकंड सेल रेफरेंस, फिर नेक्स्ट इस तरह लूप बढ़ते जाएगा। फर्स्ट फंक्शन में फर्स्ट डे आप लोगों को याद होगा, I have only little 1 or 2 minutes time only. So here, so we are calculated the function. इस function में क्या ये b तो 10 देते थे, लेकिन सर मैं want to change my values. So उसके लिए क्या करना है आपका, suppose Excel sheet पर इस डाटा को फिर मैं थोड़ा दूर कर दूँ, छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है। रोबिन सर प्लीज गिव मी only 2-3 minutes बस। फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने एक सिंपल फर्स्ट डे प्रोग्राम का बारे में डिस्कस किया, आप लोगों को याद होगा, इधर डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यूज पास करते समय पर वो नहीं लेते थे, रेफरेंस गलत बता रहे थे। मैंने रात को स्टडी करके देखा है, डायरेक्ट वैल्यू भेजने की वजह से इनपुट से मैं वैल्यू ले लेता हूँ, उस वैल्यूज को कहा एक्सेल शीट पर स्टोर कर दूंगा, फिर एक्सेल शीट पर स्टोर करने के बाद फिर एरिया को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। सो देखिए ये तो कमेंट है, फंक्शन कॉल पैरामीटर्स, a is equal to input box enter the length, b is equal to input box enter the width, जो भी है रेक्टेंगल के लिए लेंथ एंड विड्थ। अब एक्चुअली वो डाटा कहाँ एक्सेल शीट पर प्रिंट करेंगे, a1 और b1, तो a2 और b2 पर प्रिंट करेंगे, ऊपर हेडिंग्स करना है आपको, a2 और b2 पर लेंथ एंड ब्रेथ डिक्लेयर करना चाहते हैं हम, मान लीजिए। देन देखिए z इज इक्वल टू एरिया प्लस रेंज, वो रेफरेंस बता रहे हैं हम कहाँ लिख रहे हैं इसको वैल्यूज को, जो a2 पर रखा है उसको हम काम में ले रहे हैं, a2 पर b2 पर जो वैल्यूज को पास कर रहे हैं हम, फिर उस पास करने के बाद उसको क्या करेगा, ये फंक्शन बाहर आके एरिया फंक्शन देख के फिर फर्स्ट वैल्यू x के लिए, सेकंड वैल्यू y के लिए ट्रांसफर करके फिर मल्टीप्लाई करके फिर उस वैल्यू को रिटर्न करना। आप देखिए मेन प्रोग्राम में जा रहे हैं, प्लीज जो जिसके लिए मैंने समझाया आपको, देखिए ये हटा रहा हूँ आपका अगर कंफ्यूजन है। मैंने कहा आपसे ये 2 पर प्रिंट करेंगे, b2 पर, फिर z को कहा मैसेज बॉक्स में प्रिंट किया हमने, साथ साथ रेंज का साथ प्रिंट करेंगे ABC3, A2 B2 C2, ठीक है, Z प्रिंट कर। ओके फ्रेंड्स, दिस इज माय फंक्शन। कंट्रोल C, आपको दिक्कत लग रहा है तो देखिए बता दिया, वही प्रोग्राम इधर लेकर आया मैं आपको दिखाने के लिए, फोटोज वगैरह जो भी की सेक, तो आप ये है नजदीक पर लेकर आया है, ठीक है। ये है इसका फंक्शन डेफिनेशन वही है, सेम उस दिन जो भी लिखा हमने, इसमें कोई चेंजेस नहीं।
चेंजेस क्या है, बार बार फिक्स्ड वैल्यूज के जगह पर अलग अलग वैल्यूज इनपुट से रीड कर रहे हैं, हम एक अंदर स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में, एक्सेल शीट पर लिख के फिर उस वैल्यूज को पास कर रहे हैं हम। सपोज इधर देखिए LENGTH लेंथ लिखने के लिए तो WIDTH विड्थ, देन एरिया, ये रेक्टेंगल एरिया है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। We may know time is over, means we are reached to our time। देखिए फ्रेंड्स प्लीज, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आपका विभिन्न तरीके से समझाने के लिए। अब मैं क्योंकि 2 पर रेफरेंस चेंज किया ना, नीचे प्रिंट कर देगा। अब डेवलपर विजुअल बेसिक ये वाली मेन फंक्शन, उसी को मैंने बाहर लेकर आया, कर्सर इधर रखा है, इनपुट बॉक्स यूज किया हमने, देखिए इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एंटर द लेंथ, एंटर द विड्थ, इधर चेंज किया तो फिर सपोज 5, बाहर जो अभी हमने चेंज किया है ये क्या डायरेक्ट चेंज डॉट, क्या ये को यूज किया, बी को यूज किया है, ये 2 में लिखा ना गलत, A2, हाँ A2 में ये वैल्यू B2 में है, तो देन आफ्टर दैट C2 का अंदर प्रिंट करना है, C2, हाँ कमेंट लिखिए क्या, अरे सो फंक्शन कॉल z इज इक्वल टू एरिया रेंज ऑफ ए वैल्यू, हाँ ठीक है। ये क्या है, नो प्रॉब्लम, इट विल बी एक्सक्लूडेड, यू प्लीज राइट एग्जीक्यूट। उधर से कॉपी पेस्ट किया है क्या, वो कुछ इसके अंदर इंटरनल जो मिस्टेक्स जनरेट होता रहता है। हाँ इस तरह है ना, बाहर रखा कर्सर, 2 पूछने लगते हैं, आगे प्रिंट करने लगेगा 10:5, अब इसको प्रिंट करना है। देखते हैं फ्रेंड्स, मैं टाइम इज मींस ओवर, आई कैन टाइम इज हैंड ओवर टू निमी, okay, you please run it। So this is the procedure to pass out the values, means एक फिक्स्ड 5, 10 का जगह पर डायरेक्ट हमें एक वैल्यू को पास करने के लिए वेरिएबल्स का साथ रेफरेंस सेल रेफरेंस, सो विद इन दैट फंक्शन रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर्स वैल्यूज बता के फिर हम इसको पास कर सकते हैं। ये मैं सेव करता हूँ इसको, yes। sharing is stopped as a shared link, okay, no look at here friends, दिस इज ना और फंक्शन डेवलपर विजुअल बेसिक ये वाली, तो कर्सर इधर रखा है, सो रन, एंटर द वैल्यू, सपोज हमने इस बार चेंज करेंगे 25, 10, 25 into 10, 250, area of the rectangle, okay। So here in where it was printed here, then फंक्शन ऊपर से प्रिंट किया हमने, तो ये आगे मैसेज बॉक्स का अंदर प्रिंट करना है, हम एक्सेल शीट का अंदर प्रिंट करना चाहते हैं इसको। एक्सेल शीट पर प्रिंट करने के लिए क्या, RANG रेंज A1 B1 C1 पर लिखेंगे। मैसेज बॉक्स में तो प्रिंट कर रहे हैं ये डॉट वैल्यू, हाँ लास्ट मोमेंट में वैसे कंफ्यूज होता था, वैल्यू इज इक्वल टू Z, ओके। डेवलपर विजुअल बेसिक कर्सर मैंने मेन सब प्रोसीजर में रखा है, देखते हैं। अब लेंथ दे रहे हैं हम 40, 20 आ गया है,
देखिए ओके। अब एक्सेल सीट एक ही को तो रखना है ना, आपको डाटा चाहिए तो डाटा को कैसे प्रिंट करना है, LENGTH। लेंथ हो गया है, विड्थ हो गया है, अब एरिया है। ओके, सो ये डाटा मैं मिटा रहा हूँ, तो बड़ा करके दिखाता हूँ। ओम फॉन्ट साइज, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हियर आई अरेंज हियर डेवलपर विजुअल बेसिक। अब ये तो आ गया डाटा, तो A2 A2 B2 आगे बढ़ा रहा हूँ डाटा बस। वेरिएबल्स तो वही है ये भी, लेकिन एक्सेल सीट पर रेफरेंस मैंने चेंज किया। अभी सपोज यू कैन गिव एनी वैल्यू 35 5। अगर उसको जेड से प्रिंट कर रहे हैं फंक्शंस के अंदर रेंज में, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये है डायरेक्ट मैसेज में एंड टू जेड तो दे नहीं लगा ये चीज। आप यू कैन ट्राई इट। तो लेकिन तो एग्जीक्यूट करने के बाद मैसेज बॉक्स के अंदर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एंड जेड, ये तो प्रिंट करने लगा। अब देखिए मैसेज बॉक्स के अंदर क्या किया हमने, 35 5। हाँ, तो जिसमें से हम प्रिंट करते समय पर, अरे हाँ इधर अंदर चेंज करना था, रेफरेंस है ना, ऊपर चेंज किया हमने, पैरामीटर पास करते समय पर चेंज नहीं कर रहा है, दैट इज द मिस्टेक। ओके, नाउ इट इज व्हाट वी आर नॉट चेंज्ड इन द एरिया ऑफ फंक्शन के अंदर जो रेफरेंस है A1 A2 दे रहा है B2, तो दैट इज हैविंग स्ट्रिंग डाटा लेंथ एंड विड्थ, A1 पर लेंथ B1 पर विड्थ, इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा है इसी कारण से। अब देखिए 35 5 can given message box also. So what happened, what I'm telling to, I want to conclude in this section. Please Robi sir 1 minute, I want to properly close again. I want to run this one friends, look at here, this is the my program. I changed means reference change किया है, अब इधर शीट पर लेकर आया हूँ, you can make it photo or means screenshot whatever it may be। इस फंक्शन का द्वारा हम क्या बता रहे हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू देने के वजह से सेल का अंदर पड़ा हुआ वैल्यूज को मतलब इनपुट से रीड कर रहे हैं, सेल पर ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल रेफरेंसेस को हम फंक्शन में काम में ले रहे हैं। सो दैट इज द मेन इमेज डिपार्टमेंट आल्सो हैविंग फर्दर सेक्शन। फ्रेंड्स प्लीज मेक इट स्क्रीनशॉट और फोटोकॉपी, फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं दोबारा रन करके सर को हैंड ओवर करना चाहता हूँ मेरा सेक्शन। फ्रेंड्स प्लीज लुक एट हियर, so this is our function, we want to use as a reference means cell reference as a arguments parameters values को पास आउट करने के अंदर क्या किया हमने, फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू का जगह पर कांस्टेंट्स का जगह पर सेल रेफरेंसेस को काम में ले रहे हैं। ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, लेंथ विड्थ एंड एरिया रेक्टेंगल का। अब वैल्यू से इनपुट से दे रहे हैं वो नीचे प्रिंट कर रहे हैं, एरिया इधर। अब जा कहां पर, डेवलपर विजुअल बेसिक, मेरे मेन सब प्रोसीजर, फिर आई वांट टू रन हियर, I can change any value. This time suppose you can give any value 50, so 55. In message box also it is printed area of the rectangle. Okay, so this is the way to use cell references as a augmented parameters list, or you can pass the values to the arguments. A2 वैल्यू पास ऑन टू द x, B2 के अंदर जो वैल्यू पास ऑन टू द y, तो एरिया इज इक्वल टू x into y। A2 के अंदर इतना पड़ा है तो उसी को ही ये क्या करेगा, रेफरेंस में लेगा, तो बड़ा वैल्यू आपको कंफ्यूज है। सो लास्ट एंड फाइनली रन कर रहा हूं मैं, सिंपली सपोज 10 with 5, 10 into 5 50, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50। आप देखिए तो इसमें क्या हुआ, एक्सेल शीट पर जाते समय पर A1 पर पड़ा हुआ A2 पर
10, ठीक है ना। ए का अंदर एंटर द लेंथ 10 दिया हमने, फिर वो ए का अंदर स्टोर किया विथ, चेंज है स्पेलिंग वो छोड़ो, फिर बी का अंदर विथ है। सो ये दोनों इनपुट से रीड किया, वैल्यूज को एक्सेल शीट पर लिखा, A2 पर वैल्यू लेंथ को लिखा है, B2 पर विथ को लिखा है, लेकिन जो फंक्शन कॉल करते समय पर z इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेंज A2, A2 के अंदर क्या पड़ा 10, फिर कामा रेंज B2, B2 के अंदर क्या पड़ा 5, सो 10 कामा 5 इनडायरेक्टली ले लेगा, फिर z इज इक्वल टू एरिया, तो एरिया फंक्शन है, सो लेफ्ट साइड वैल्यू फर्स्ट कंप्लीट करेगा, फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम। सो इस मेन प्रोग्राम से बाहर आने के बाद मेरा फंक्शन एरिया मिला उसको, फिर A2 का अंदर पड़ा हुआ 10 वैल्यू पास ऑन टू द x, B2 का अंदर पड़ा हुआ वैल्यू 5 will be passed on to the y, indirectly x is equal to 10, y is equal to 5, so 10 into 5 50, 50 will be computed and assigned to the area, this value will be passed on to the main program, so area then it will be assigned to the z, so z value 50 will be printed here, C2 in the message box also. Friends, don't make any confuse, even though फंक्शंस ना आईक्यू पर्संस जो ब्रिलियंट बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा बहुत शुरू में तकलीफ देगा, अगर फंक्शन समझ में आ गया तो आप यू कैन हैंडल एनीथिंग। ओके, इन नेक्स्ट क्लास मींस टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द यूजर फॉर्म्स कंट्रोल्स, actually. Thank you for joining all of you.